السلام علیکم۔ آج ہم اس صحابی کے بارے میں بتائیں گے جس نے فارس کو فتح کیا۔ ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ نبی اکرم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ وہ عشارہ مباشرہ میں سے ہے۔ وہ 10 صحابوں میں سے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا اس بادشاہ کے بارے میں جس نے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ 636 عیسوی عراق کی سرزمین پر دھول اٹھ رہی تھی۔ ایک طرف دنیا کی طاقتور ترین سلطنت کی فوج کھڑی تھی، ہزاروں گھڑ سوار، بھاری ہتھیاروں اور بہت بڑے جنگی ہاتھی۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی فوج کھڑی تھی۔ اس وقت فارس کی ساسانی سلطنت دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک تھی۔ اس کا بادشاہ تھا یزدگرد تھرڈ۔ دوسری طرف عرب میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کا خلیفہ تھا عمر بن الخطاب۔ سلطنت فارس کی جابرانہ حکمرانی سے پریشان لوگ آزادی چاہتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ عمر نے ایک لشکر فارس کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی کمان عظیم صحابی سعد بن ابی وقاص کو دی گئی۔ فارس نے اپنا سب سے بڑا جرنیل اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، رستم فرخزاد۔ تصادم اب ناگزیر تھا۔ جب مسلمانوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مذاکرات کے لیے ایلچی بھیجے تو ان کے ایک مشہور ساتھی ربعی بن عامر تھے۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس فارسی جرنیل رستم فرخزاد کے عظیم دربار میں پہنچا۔ دربار کو سونے اور ریشم سے سجایا گیا تھا، لیکن ربعی بن عامر اپنے گھوڑے سمیت سیدھا اندر چلا گیا اور اپنا نیزہ قالین میں گاڑ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے تاریخی جواب دیا، اللہ نے ہمیں لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر پوری عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فارس کی فوج کے پاس بہت زیادہ جنگی ہاتھی تھے۔ مسلمان سپاہیوں کا اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بہت سے گھوڑی خوف زدہ ہو گئے۔ تیار ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کچھ مسلم لائنیں پیچھے ہٹ گئیں، لیکن جلد ہی فوجیوں نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے ہاتھیوں کی مہاوتوں اور آنکھوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہاتھی بے قابو ہوئے تو پیچھے ہٹ گئے اور اپنی ہی فوج میں بھگدڑ مچانے لگے۔ یہ جنگ میں ایک اہم موڑ بن گیا۔ قادسیہ کے میدان۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ فارس کی فوج تعداد میں بہت برتر تھی۔ ان کے پاس بھاری ہتھیار، تربیت یافتہ سپاہی اور جنگی ہاتھی تھے۔ مسلمانوں کی فوج چھوٹی تھی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں نے ایک آخری اقدام کیا۔ انہوں نے فارس کے سپہ سالار کے پاس قاصد بھیجے۔ رسولوں نے کہا، ہم آپ کو 3 چیزیں پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کر کے سکون سے رہو، یا جنگ کی تیاری کرو۔ فارس کی عدالت نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پہلے دن کی لڑائی بہت سخت تھی۔ فارس کی فوج اپنے جنگی ہاتھیوں کو آگے لے گئی۔ یہ بڑے ہاتھی مسلمان سپاہیوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ بہت سے گھوڑے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ہلکی سی ہلچل مچ گئی، لیکن پھر کمانڈروں نے فوجیوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا ہاتھیوں کی مہاوتوں اور آنکھوں کو نشانہ بنانا۔ قادسیہ کی جنگ جو 636 عیسوی میں لڑی گئی، اسلامی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ قادسیہ کے میدان میں جہاں حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا، یہ اللہ کے شیر
सहद बिन अबी वकास थे। साद बिन अबी वक्कास के पास थी और फारसी फौज की क़यादत जनरल रुस्तम फर्रुखजाद कर रहे थे। ये जंग खलीफा उमर बिन अल खत्ताब के दौर में ताकतवर सासानी सल्तनत और इस्लामिक स्टेट के दरमियान लड़ी गई। तारीख अक्सर बताती है कि तकरीबन 30,000 से 40,000 मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी फारस फौज को शिकस्त दी। ये फतह अचानक नहीं थी, इसके पीछे कई अहम अवामिल थे। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई नहीं जो मुश्किलात को हल कर सके। हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। पहले दिन की लड़ाई बहुत सख्त थी। फारिस की फौज ने अपने जंगी हाथियों को आगे बढ़ाया। ये बड़े हाथी मुसलमान सिपाहियों के लिए एक नया तजुर्बा था। बहुत से घोड़े डर के मारे पीछे हट गए। मुसलमानों की सफों में हल्की सी हलचल मच गई, लेकिन फिर कमांडरों ने फौजियों का कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने हिकमती अमली बदल दी। घुड़सवारों को हुक्म दिया गया हाथियों की महावतों और आंखों को निशाना बनाना। रफ्ता रफ्ता हाथियों का कंट्रोल खत्म होना शुरू हो गया और पहला दिन बगैर किसी फैसला कुन नतीजे की खत्म हुआ। कादिसिया की जंग में फतह सिर्फ तादाद की वजह से नहीं थी, ये इसके जरिया कार फरमा था। मजबूत ईमान, बहादुर सिपाही, स्ट्रेटेजिक क़यादत और तारीख के कुछ अहम मोड़। ये जंग मुसलसल 4 दिन तक जारी रही और हर दिन का अलग नाम था। यौमुल अरमा पहला दिन, यौमुस्सूस दूसरा दिन, यौमुल अगमास तीसरा दिन, लैलतुल हरील गरजने वाली रात। आखिरी रात तलवारों और ढालों की आवाज इतनी बुलंद थी कि मौर्रिखीन ने उसे थंडरिंग नाइट कहा। इस जंग के दौरान मुसलमानों की फौज के सिपा सालार साद इब्ने अबी वक्कास बीमार था। उसकी कमर में शदीद दर्द था और वो घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था, लेकिन उसने एक ऊंची इमारत से पूरी जंग की फौज को हुक्म दो कि साबित कदम रहें। फतह अल्लाह की मदद से ही मुमकिन है। जी बेहतर अमीर अल मोमिनीन। आदत की। वहां से वो फौजियों को अहकामात देता रहा और पूरी हिकमत अमली की निगरानी करता रहा। जंग के आखिरी दिन मुसलमान फौजियों ने फारसी कमांड सेंटर पर हमला किया। इसी वक्त फारस की फौज की चीफ कमांडर रुस्तम फर्रुखजाद मारा गया था। जैसे ही ये खबर फारस की फौज में फैली तो उनके हौसले पस्त हो गए और फौज खौफजदा। ये इंसान नहीं, ये अल्लाह की फौज है। ये वो लम्हा था जिसने जंग का फैसला किया। इस फतह के साथ ही मुसलमानों ने फारस के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। मदीना और सासानी सल्तनत का जवाल शुरू हुआ। कादिसिया की जंग में फतह महज तादाद की वजह से नहीं थी, इसकी वजह से था मजबूत ईमान, बहादुर सिपाही, स्ट्रेटेजिक क़यादत और तारीख के कुछ फैसला कुन मोड़। चौथे दिन जंग की लहर बदलने लगी। मुसलमानों के घुड़सवार दस्तों ने तेज हमला किया। उन्होंने फारसी फौज की कमान को निशाना बनाया। इसी दौरान फारसी कमांडर रुस्तम फर्रुखजाद उसके कैंप के करीब था। वो लड़ाई के दौरान मारा गया। जब ये खबर फारस की फौजों तक पहुंची, उनकी सफें टूटने लगीं। कमांडर की मौत ने फौज के हौसले पस्त कर दिए। कुछ ही देर में फारस की फौज खौफ व हरास में मुब्तला हो गई। कादसिया के मैदानों में गर्दो गुबार का तूफान बरपा था। मुसलमानों की फौजें आगे बढ़ रही थीं, फारस की फौज पीछे हट रही थी। ये वो लम्हा था जब सदियों पुरानी ताकत पहली बार मुकम्मल तौर पर बिखर रही थी। इस फतह ने तारीख का धारा बदल दिया, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों ने फारस के दारुल हुकूमत की तरफ कूच किया, मदीना, और कुछ अरसा बाद वो भी फतह हो गया। कादसिया की जंग महज एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक बड़ा तारीखी वाकया था जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल दिया। इस फतह के बाद सल्तनती फारस आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होने लगी। लेकिन इस कहानी का असल सबक ये है, तारीख सिर्फ आदात से नहीं बदलती। कभी कभी छोटे ग्रुप भी मजबूत ईमान,
नज़्म व ज़ब्त और मुनासिब क़यादत के साथ बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं। और यही वजह है कादसिया की जंग आज भी इस्लामी तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से एक समझी जाती है। इस बादशाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया। वो फारिस का शहंशाह खुसरो परवेज खुसरो सानी था। उस वक्त फारिस पर सासानी सल्तनत की हुकूमत थी, लेकिन बाद में इस्लाम के दौर में यही इलाका मुस्लिम फौजों ने फतह कर लिया। किस सहाबी ने फारिस को फतह किया? मशहूर सहाबी ने फारिस की अजीम फतह की क़यादत की। उसे साद बिन अबी वक्कास ने किया। ये फतह बिलखुसूस खलीफा की उमर बिन खत्ताब के दौर में हुआ। सबसे बड़ी जंग फारिस को शिकस्त देने की थी। जंग कादसिया 636 ईस्वी। इस जंग में साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों के लश्कर की कमान थे। रुस्तम फर्रुखजाद फारसी फौज की कमान थे। कई दिनों की लड़ाई के बाद फारिस की फौज को शिकस्त हुई। इसके बाद क्या हुआ? इस फतह के बाद मुसलमानों ने फारिस की दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। मदाइन साइटिसिफोन को फतह किया। ये वही सल्तनत थी जिसकी बादशाह ने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था। चंद सालों के बाद आखिरी सासानी शहंशाह सल्तनत फारिस का खात्मा यज़दगिर्द सोम की शिकस्त के साथ हुआ। चौथे दिन जंग की लहर बदलने लगी। मुसलमानों के घुड़सवार दस्तों ने तेज हमला किया। उन्होंने फारसी फौज की कमान को निशाना बनाया। इसी दौरान फारसी कमांडर रुस्तम फर्रुखजाद उसके कैंप के करीब था। वो लड़ाई के दौरान मारा गया। जब ये खबर फारस की फौजों तक पहुंची, उनकी सफ़ें टूटने लगीं। कमांडर की मौत ने फौज के हौसले पस्त कर दिए। कुछ ही देर में फारस की फौज खौफ व हरास में मुब्तला हो गई। कादसिया के मैदानों में गर्दो गुबार का तूफान बरपा था। मुसलमानों की फौजें आगे बढ़ रही थीं। फारस की फौज पीछे हट रही थी। ये वो लम्हा था जब सदियों पुरानी ताकत पहली बार मुकम्मल तौर पर बिखर रही थी। इस फतह ने तारीख का धारा बदल दिया, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों ने फारस के दारुल हुकूमत की तरफ कूच किया, मदीना, और कुछ अरसा बाद वो भी फतह हो गया। कादसिया की जंग महज एक फौजी फतह नहीं थी। ये एक बड़ा तारीखी वाकया था जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल दिया। इस फतह के बाद सल्तनती फारस आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होने लगी। लेकिन इस कहानी का असल सबक ये है, तारीख सिर्फ आदात से नहीं बदलती। कभी कभी छोटे ग्रुप भी मजबूत ईमान, नज़्म व ज़ब्त और मुनासिब क़यादत के साथ बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं। और यही वजह है कादसिया की जंग आज भी इस्लामी तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से एक समझी जाती है। तारीख के असबाक आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। इन मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।